أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غزوہ خیبر کا ذکر ہو رہا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خیبر کی طرف Ще продължа да споменавам подробности относно събитията при битката при Хебър 1600 جانساروں کا لشکر, под ръководството на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелям. لیکن روانگی سے قبل Армията от 1600 мюсюлмани, خبر رساں دستہ тръгнали от Медина, جس کا کام تھا کہ لشکر کے آگے آگے راستوں کی и светия пророк салалаху алейхи васелям също изпратил اس دستے کے قائد حضرت عباد بن пратеник пред армията, за да събере информация خیبر کے راستوں سے آگاہی کے لیے и да провери пътищата, по които армията ще поеме. 20 سا کھجور کی اجرت پہ لیے گئے. 20 سا کا مطلب 50 کلو. Този пратеник бе حسیل بن خارجہ اشجعی воден от Хазрат Аббад بیان کی бин Бишр разилянху. اور یہ دونوں اشجع قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. مدینہ سے خیبر کی طرف Мюсюлманската армия спряла по пътя на различни места. صحابہ Едно от тези места се нарича Сахба, کا وقت ہوا. където светия пророк салалаху алейхи васелям چنانچہ بخاری کی почивал и се молил. نے عصر کی نماز پڑھی. Една нощ, докато армията напредваше, والوں کے پاس صرف ستو ہی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے وہی تناول فرمایا. се е видяла една малка светлина на предната страна. مغرب کی نماز کے لیے کھڑے Когато светия пророк салалаху алейхи васелям اور ہم نے بھی کلی کی. پھر آپ نے проверил какво е това, се оказало, че това е член на мюсюлманската армия, صحابہ който е продължил пред армията и лунната светлина се отразявала върху самия му шлем. واقعات بھی پیش آئے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے ہنگامی Светия пророк салалаху алейхи васелям го извикал и му казал, че не трябва да کی تربیت کا کتنا خیال ہے изоставя اور نظم و ضبط اور اطاعت редиците جیسی صفات پیدا и توجہ دلاتے رہتے تھے. че лунната светлина отразява шлема му. ایک رات لشکر کے Трябва да کوئی چمکتی ہوئی چیز چلتی ہوئی върви заедно с رسول اللہ армията. کو فکر ہوا Така този човек се оказа کہ اسلامی لشکر کا ایک سپاہی още един от сподвижниците, چلا جا رہا تھا. който нямаше средства да остави нищо за семейството си ابو ابس تھا или да се присъедини към армията. کہ اس کو میرے پاس لاؤ. Светия пророк салалаху алейхи васелям му дал کرتے ہیں своето покривало на метало, کہ کہیں میرے بارے میں куч نازل نہ ہو گیا ہو. и който спътникът продал за 8 дирхама حاضر ہوئے. това на метало. صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں لشکر کو Той използвал тези дирхами, за да купи храна на семейството си, کرتے فرمایا а след това използвал останалите, за да си купи покривало سے باتیں کرنے لگے. и се присъединил към армията. نادار صحابہ میں سے ایک تھے جن کے پاس اس جنگ میں آنے کے لیے کوئی زیادہ راہ نہ تھا.
और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए थे। Светия пророк, салалаху алейхи селам, се усмихнал और ना ही и когато научил какво е направил спътникът, इस पर नबी अकरम който му дал и казал, че ще дойде време, когато той няма да бъде поразен от такава бедност. Случило се така, че всичко, което светия пророк 8 दिरहम में उसको बेच दिया। салалаху алейхи веселам казал на този спътник, Абу Абс разделянху, और 4 се е сбъднал. खरीद ली और लश्कर में शामिल हो गया। दौरान गुफ्तगू Подкрепата на Аллах за светия пророк салалаху селам и мюсюлманите, въпреки помощта на Бану Гатуан за Хебър, तफसील बयान की जो बयान हुई है светия пророк салалаху селам се научил, че Бану Гатуан се е заклел да поеме и да помогне на Хебър बहुत तंग दस्त हो и е тръгнал с армия от 4000 души, जिसके हाथ में मेरी планирайки да атакува мюсюлманската армия, और लंबी उम्र преди дори да успеят да стигнат до Хебър. कि तुम्हारे Светият пророк салам се е свързал с तुम्हारे अहले खाना Бану Гатуан नान नफका भी बहुत чрез писмо, तुम्हारे в यहाँ което ги съветвал да стоят на страна कसरत हो जाए от тази битка между мюсюлманите. लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा नहीं होगा। И Хебър, като казал, че Аллах му е обещал победа над Хебър, и въпреки това, виждайки, че अल्लाह की कसम सब мюсюлманите имаха само 1600 войници и го अब वो उसका तारुफ ये है कि इनका असल नाम अब्दुल उज़्ज़ा था जिसे बदल कर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल रहमान направиха така, че с помощта на उन्होंने 70 वर्ष еврейските और हज़रत उस्मान की अहद खिलाफत में वफात पाई। войници, हज़रत това предупреждение от светия пророк Селам бе пренебрегнато, но светия пророк Селам е казал, че бил подпомогнат от могъщото благоволение от Аллах बयान हुआ है и това се проявява още веднъж и в този случай с Бану Гатуан. असर और मगरब और इशा वहीं Тяхната армия от 4000 के फासले पर थी। се беше заела да спре мюсюлманската армия, बुलाया обаче поради някаква причина армията на Бану Гатуан बताते हुए फरमाया внезапно се обърна खैबर पर इस तरह हमला कर и се е върнал у дома. कि एक तरफ तो अहले खैबर Записано е, че войниците ताकि वो वहां से भाग чули силен глас зад себе си, कबीला बनु गतफान който обявявал, че мюсюлманите атакуват को ना पहुंच सके। домовете им. हसील नामी राहबर लश्कर को लेकर चलने लगा और ऐसी जगह पहुंचकर रुक गया जहां से मुख्तलिफ रास्ते И така от страх се върнали в домовете си. तक जाते थे। И нямаше човек, който да казва това по-скоро. Това беше пример за Божията помощ हजन शाश и неговия глас, който достигнал до ушите им. जो अपने मानों के एतबार से तंगी सख्ती और गम अंदो पर दलालत करते थे। Светия пророк салалаху алейхи селам е फराखी के मानी रखता है। продължил пътуването си и е достигнал खुदाई रहनुमाई के मुताबिक крепостите на Хебър हुए към вечерта. नामी रास्ते का इंतखाब फरमाया। При пристигането си светия пророк салалаху алейхи селам वसल्लम को ये खबर हो चुकी инструктирал сподвижниците да чакат खैबर की मदद и се молил за победа. और अब वो मजीद Тогава светия пророк салалаху инструктирал कि वो इस्लाम сподвижниците पहुंचने से पहले ही रास्ते में да продължат. इस्लामी लश्कर पर हमला कर Евреите се гордееха अपने नाम и се чувстваха сигурни в своите крепости की क़यादत में и затова не мислеха, че е светия пророк. भेज दिया था और वो खैबर के किलों तक पहुंच चुका था और अब 4000 Салалаху алейхи васелам някога ще влезе в битка с тях. रास्ते में था। И въпреки това, на следващата сутрин, बनु गतफान से राब्ता फरमाया когато евреите излязоха от своите крепости и видяха светия пророк салалаху да стои отвън,
Те избягаха обратно उनको वादे फरमाया вътре и се скриха. फतह देगा बाज़ मौरखीन के मुताबिक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी पैगाम दिया कि वो यहूद का साथ देने से हट जाएं और इस्लाम कबूल कर लें तो खैबर फतह करने के बाद उन कबाइल को दे दिया जाएगा Има различни записи बाज़ के относно नज़दीक броя на मौजूदगी крепостите की शर्त नहीं रखी थी в Хебър. बल्कि ये फरमाया था Хебър беше разделен на अगर 3 कोई части, मोहसिन सिर्फ गैर जानबदार होते हुए हट като जाए तो खैबर की सालाना पैदावार का निस्फ उन्हें दिया जाएगा на Тат, लेकिन които имаше 3 200 крепости, मुसलमानों के मुकाबिल पर Шик, 15,000 който जंगजू имаше 2 крепости, и भूतकालों का Катба, गुरूर उनके който सामने имаше 3 крепости. जिसकी वजह से उन्होंने हज़रत Преди да започне битката, से इनकार कर दिया светия пророк Сърсалам се обърнал खजरज към कबीले के सरदार мюсюлманите सहाबी и ги साथ के посъветвал वादा को да не желаят да се изправят лице в лице с врага, а да търсят мир от Аллах. के И когато се изправят лице в лице с врага, трябва да се молят за Божията помощ. कि हज़रत साद बिन Тогава светия пророк Сърсалам инструктирал сподвижниците की हिस्से से आए हैं да останат तो वो उन्हें किले के अंदर लाने के इरादे से जाने लगा तो търпеливи. अर्ज किया И първо крепостта Найм, नहीं लाना चाहिए която се смяташе за най-силната крепост, мюсюлманите водиха жестока битка कि मैं चाहता हूँ कि मुसलमानों и светият пророк Сърсалам яздеше кон, की तैयारियों के बेहतरीन облечен в 2 слоя войска हरबनामा с меч и щит в ръка. किले से बाहर मिला हज़रत साद ने ओयाना को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम दिया कि अल्लाह ने हमें फतह खैबर Хазрат Махмуд бин Маслам Арзланху लिहाजा तुम यहाँ загинал като мъченик в тази битка करने के बाद उसकी साल भर की खजूरें и 50 мюсюлмани са били ранени. साद से कहा В резултат на अपने हलीफ को किसी सूरत नहीं छोड़ били обстреляни с стрели. जानते हैं कि तुम लोगों की ताकत ही कितनी है ये यहूदी Изстреляни от евреите, тази крепост е била под ръководството на Мархаб, който е смятан за най-силният и известен еврейски войн. मुकाबला किया Записано е, че тази битка продължила 10 дни. तरह के लोग नहीं हैं कि जिन पर तुमने फतह पा ली थी और साथ ये भी कहा कि मेरा ये पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दे देना और साद ने उसके इस मुतकबराना जवाब पर वैना Един ден по време на тази битка कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर तेरे पास इस किले में आएंगे और अब इस वक्त जो पेशकश हमने तुझे की है उस वक्त तुम हमसे इसका मुतालबा Мархаб излязъл от крепостта तब तुझे तलवार и започнал да размахва меча си, और ए वैना मैं देख चुका हूँ कि हम докато предизвиквал мюсюлманите. और वो बुरी तरह Хазрат Амир бин Аква कहकर साद излязъл от мюсюлманската армия सल्लल्लाहु अलैहि и двамата имаха битка. वसल्लम और साथ ही बड़े इखलास से अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने जो वादा आपसे किया है वो उसे ज़रूर पूरा करेगा और अपने दीन को която в крайна сметка доведе до мъченическата смърт на Хазрат Амр उसे आन लिया Разиранху, правейки го втория мъченик в тази битка. कबर खंदक के रोज़ वो भागे थे И светия пророк Сърсалам भी ये कबीला го похвалил, लश्कर लेकर като казал, че е много смел, और फिर वहाँ से а имаше много малко толкова смели като него. खुदाई रोब और गुतफानियों के फरार का जिक्र भी मिलता है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नुसिर तो बिर्रो मुझे रोब से मदद दी गई है ये वाक़या अमलन यहाँ एक मरतबा फिर गुतफानी फ़ौजों के लिए रुनुमा हुआ जैसा कि जिक्र हुआ है कि बनु गतफान का 4,000 का लश्कर इस्लामी फ़ौज पर हमला करने के लिए ताकुब कर रहा था Както споменах, че मुसलमानों को खैबर पहुंचने से रोक दे
लेकिन कोई ऐसी Светият пророк Сасилам е казал, जाहिर हुई कि че е गतफान का ये бил लश्कर अचानक वापस помогнат पलटा с और अपने помощта दिल की на आग Аллах. देख के И तारीख въпреки, से че कुतुब में लिखा है कि गतफानियों के тяхната армия अपने पीछे от से 4000 दो се तार беше आवाज заела एक इंतवा да पैदा спре हुई мюсюлманите, वाला उन्हें आवाज देकर कह रहा था कि मुसलमानों के फौजी दस्तों ने उनके पीछे से उनके घरों और माल मवेशी पर गारत करी कर दी है और वो उनके अम्वाल और औरतों और बच्चों को कैद करने वाले हैं। इस पर वो फौरन वापस поради भाग गए някаква और причина यहूद की मदद न करने लगे। армията на जब Бану उनकी तरफ से Гатван अल्लाह ताला की आवाज़ थी। внезапно се обърнала तारीख и की се е कुतुब में върнала у дома. गतफान के लश्कर की तादाद में इख्तलाफ भी है, जैसा कि पहले एक किताब के हवाले से बयान हुआ है कि बनु गतफान में से 1000 जवान Обаче поради някаква причина बिन हिस्न के армията на Бану खैबर Гатван गजों के लिए внезапно तैयार се थे, जबकि दीगर कुतुब सीरत обърна и се върна у में дома. आए 4000 फौजी Записано е, че войниците чули силен глас इसी तरह बाद कुतुब зад себе си, सीरत में लिखा है който обявявал, че जंगी में बनु गतफान के 4000 अफराद पर मुश्तमिल लश्कर мюсюлманите атакуват домовете им तो रास्ते में ही и आप така от страх के वफद के साथ се върнали в बातचीत हुई और домовете си. खुदाई रोग की वजह से ये 4000 अफराद पर मुश्तमिल रास्ता वापस Нямаше който да चला गया। казва относно това. लिखा है इस तरह По-скоро това беше пример за सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Божията помощ. अपना सफर जारी रखा और शाम के अंधेरों में जब खैबर के किले दिखाई दिए तो आपने सहाबा से फरमाया ठहरो। И Божия глас, तो आप който достигнал до ушите им. अल्लाहुम्मा रब्बस समावाति सबा वमा अज़लल Светия пророк, салалаху алейхи васелам, सबा е продължил пътуването си शयातीना и е достигнал अज़लल крепостите на Хебър या към вечерта. अज़रैना फ़इन्ना नसअलुका मिन खैर हाज़िहिल क़रियति व खैर अहलिहा व नऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा फ़ीहा अक़दिमू बिस्मिल्लाह। ए सातों आसमान के रब और हर इस चीज़ के जिस पर इनका साया है Светия пророк салам е продължил пътуването си उन्होंने и е достигнал крепостите на Хебър के रब към вечерта. को उन्होंने गुमराह किया И при пристигането си, और जो कुछ वो उड़ाती हैं ए अल्लाह Светия пророк, салалаху алейхи васелам, और उसके инструктирал сподвижниците और उसके अहल да чакат и да се молят за победата. ने फरमाया अल्लाह ताला का नाम लेकर आगे बढ़ो। Това тогава Светия пророк салам инструктирал रवाना हुए сподвижниците मंजिला पहुंचे। да продължат, खैबर का बाजार था но евреите се гордееха и се чувстваха сигурни в своите крепости и затова не мислеха, че Светия пророк खैबर के बाजार में गुजारा салалаху алейхи васелам някога ще влезе в битка с тях. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर हमला करेंगे क्योंकि यहूद को अपने किलों और असला और कसरत अफराद पर घमंड था। जब यहूद को ये मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ आ रहे हैं तो हर दिन 10,000 जंगजू आदमी सफ़ें बांध कर बाहर निकलते और कहते कि ज़रा देखो कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर लश्कर कशी करेंगे। Въпреки опасността и страха, който изпитваха враговете на мюсюлманите, подготвяха на ден по 10 000 души нови хора, които да пазят दाल और टोकरियां थीं अपने काम करने के लिए निकले थे। जब उन्होंने от мюсюлманите. देखा तो भागकर अपने किलों में छुप गए। हज़रत अनस से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर में रात के वक्त पहुंचे जो जब तक सुबह ना हो लेती Според различни записи относно броят на крепостите, और जब सुबह हुई तो यहूद अपने कुदालें और टोकरे लेकर निकले в Хебър पहुंचे थे са били разделени на три части, както споменах. सुबह होती। जब सुबह हुई तो यहूद अपनी कुदालें और टोकरे Един ден по време на тази битка, देखा कहने लगे कि Мархаб излязъл от крепостта и започнал да размахва меча си
докато мюсюлманската армия, इन्ना इदा двамата имаха битка, в която в крайна сметка फसा सबाह मुंजरी е довела до мъченическата खैबर смърт पहुंचे на Хазрат और Амир, किसी पहाड़ से Зеленхо, में उतरते हैं и правейки बताया го जाता है втория कि वो мъченик в अपनी тази битка, светия пророк, салалаху алейхи васелам, го похвалил, मुस्तकिल като पड़ाव दिखाई казал, गई че е бил много इस्लामी смел डिक्शनरी पड़ाव में и имаше много малко толкова смели като इसके него. बारे में यूं जिक्र मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर पहुंचे तो आपने मंजिला मुकाम पर रात गुजारी और वहीं सुबह की हज़रत हुबाब बिन मुंजिर आपके पास आए और अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका ये Победата, वादा която е जो била आपने निकाला пророкувана на Хазрат मनाने Али अल्लाह के Разиланху, हुक्म से है तो हम कुछ नहीं कहते अगर अगर आपकी राय है तो हम मशवरा देते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा देते हैं देना चाहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये फरमाया ये राय तो मेरी है हज़रत हबाब ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह आप इनके किलों के करीब हो गए हैं और इनके बागों के सामने हैं और ज़मीन शोर वाली है और मैं अहले नता को जानता हूँ इनके तीर बहुत दूर पहुँचते हैं аз ги, तीरंदाजी में इनके बराबर कोई नहीं един от членовете और на सबसे ऊंची जगह тия पर пророк казал, че इनके तीर о пророк на बहुत Аллах, दूर पहुँच सकते हैं техните стрели може да достигнат много близко към нас वो खजूरों के तनों में и छुप सकते हैं लिहाजा затова मेरी нека दरख्वास्त है се скрием कि да आप отмине सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से вечерта दूसरी जगह и на следващия ден да атакуваме. आपने फरमाया तुमने अच्छी राय दी है И लेकिन така आपने светия मुझसे пророк मशवरा करने Саселам की बात कही приел неговото लेकिन साथ ही रसूलुल्लाह предложение и съвет सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहम्मद बिन मसलमा को बुलाया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत и में थे така и направил, और फरमाया इनके किलों से कुछ दूर हमारे लिए जगह तलाश करो मोहम्मद बिन मसलमा че चलते चलते रजी के मकाम потърси पहुंचे някое място определено जो за нас. गतफानी कबाइल के दरमियान वाक़ था और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस लौट कर अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम След като се върнали при светия пророк मैंने отново आपके लिए एक जगह देख ली и казали, о пратеник на Аллах, аз इसमें съм видял फरमाया едно място за अल्लाह вас. ताला की बरकत के साथ चलो И लेकिन इससे पहले светия пророк казал, रसूलुल्लाह добре, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया вървете с благословите на रात Аллах. भी इसी जगह से होगी चुनांचे शाम को И खत्म होने के बाद така वही вечерта जगह पर सारा इस्लामी लश्कर светия пророк Сасалам казал, че войната, खैबर के че किलों की ще трябва да бъде от еди तफसीलें तो коя си इनकी точка. तकसीम के बारे में भी बयान ज़रूरी है खैबर की जगहराई तकसीम के हवाले से इसके किलों का तस्करा यूँ है क्योंकि ये जंग Според किलों से ही а, मुतल्लिक रही लेकिन историци, दीगर फतह हुए относно тази इनके битка ज़ुल्म и ज़िहाद के खिलाफ присъстващите в нея, बल्कि इनके नामों में भी има इख्तिलाफ है някои недоразумения, इस जंग но के аз वाक़यात ще спомена тези, कुतुब में बाज़ किस्म които के जिक्र смятам है за और दीगर कुतुब най-близки, में दीगर но किलों का Аллах знае най-добре. मंसूब किया गया तारीख़ याकूबी में खैबर के किलों की तादाद 6 बयान В की गई историята на और उनमें Якуби किला е नाइम का जिक्र записано, नहीं जबकि अक्सर कुतुब सीरत में जंग खैबर का आगाज़ ही इसके че किले नाइम से बताया गया है повечето книги относно живота на मगानी में Хазрат किलों की Мухаммад तादाद 10 बयान की है салалаху алейхи васелам, इन तमाम कुतुब को देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि खैबर का इलाका 3 हिस्सों ако, ज़ा शक और कतीबा में ако तकसीम се कर सकते हैं погледне और относно इन तीनों हिस्सों में 8 किले जज झैल तकसीम के मुताबिक थे नता में 3 किले थे यानी नाइम सात относно броя на और крепостите किला जुबैर в तीनों किलों Хебър का नाम कुल्ला था ये बदौलत бе разделени на три части, से नाम किला जुबैर मशहूर हो गया като शक първата е में била 2 किले Натат, यानी която имала три крепости и या बाज ने नज़ार बयान किया है और कतीबा में 3 किले थे यानी कमूस वती और सुलालिम другата е била जंग की तफसील यूँ है जंग शुरू होने से पहले आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
सहाबा से एक मुख्तसर Кати खिताब и फरमाया। Сулейм. खिताब करते हुए फरमाया, दुश्मन के साथ सामना होने की तमन्ना मत करो, अल्लाह ताला से आफियत तलब करो। तुमको मालूम है че कि तुम किस търсете हालात में от Аллах लिए जाओ। जब तुम दुश्मन के благоволение, सामने आओ мир, तो ये दुआ करो, покорство, अल्लाह हुम्मा спокойствие अंता रब्बुना व रब्बुहुम и се молите със следната молитва. वासिहुम बेयदिका व इन्नमा तक़्तुलुहुम अंता। ए अल्लाह, तू हमारा रब है और उनका रब, उनकी पेशानियाँ और हमारी पेशानियाँ तेरे हाथ में हैं, तू ही इनको कत्ल करेगा। О Аллах, फिर इसके बाद нашите проблеми са Твои проблеми जंग и का ऐलान нашите किया। трудности са Твои सहाबा कराम трудности, सब्र की така че отдалечи нашите проблеми от тези безбожни सबसे хора पहले и नस्र направи और така, че ние да имаме успех, ये напредък и उनका मजबूत да наделеем от останалите. И रसूलुल्लाह така सल्लल्लाहु е अलैहि वसल्लम ने станало. फिर सख्त जंग की और अहले नता ने आपको सख्त तरीन मुकाबला किया और उस दिन सहाबा कराम ने दिफा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो ज़रहें और खौद पहन रखा था और ज़रे घोड़े पर सवार थे। Светия пророк Сърселям е और бил घोड़े का नाम облечен в двойна सबके हाथ में шлема नेज़ा और ढाल थी। и दुश्मन с मुसलसल меч и बरसाता रहा, लेकिन मुसलमान एहतियात से तीर बरसा रहे थे क्योंकि तीर कम थे, каска на главата. क्योंकि यहूद के गिरे हुए तीर भी उठाकर उन्हीं पर बरसा दिए जाते थे। Но той е видял, че има जंग доста में поразени в тази हज़रत битка. महमूद बिन मसलमा की शहादत का जिक्र भी मिलता है। हज़रत В महमूद тази битка се споменава за थक गए, мъченичеството उनका रोना на लगने लगा, Мухаммад गर्मी ने खूब бин सताया Аслама, तो वो नायत के Махмуд किले бин के दरवाजे Аслама, साहिब में बैठ गए। कहा जाता है कि यहूदी सरदार मरब ने उनको देख लिया और उन पर चक्की लुढ़का दी। ये भी कहा जाता है कि किनाना बिन रबी ने लुढ़काई थी каза се, че Кенана бин Рави चक्की उनके го सर е, पर रखी और उनके सर को इस तरह ги е फाड़ दिया закачил, कि उनके सर की खाल कट कर चेहरे पर आ पड़ी। като उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम един से बताया गया човек, कि जान който को е रखा और कपड़े से इसकी पट्टी बांध दी, मगर जख्म इस कदर शदीद था कि हज़रत महमूद बिन मसलमा जानबर ना हो सके और चंद दिन के बाद वफात पा गए। за определени дни जख्मी होने पर много бързо आप починал, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके भाई हज़रत मोहम्मद बिन но हुसैन को Хазрат तसल्ली देते हुए फरमाया Мухаммад कि तुम्हारे бин भाई का कातिल Хусейн जल्द е अपने वतन казал, पहुंच जाएगा। че на इस पहले दिन погребението से на твоя брат मुसलमानों को и बहुत नुकसान веста पहुंचना ще होगा। се ये разпространи वाक़या много हुआ जिसमें бързо 50 मुसलमान जख्मी हुए जब शाम में и според रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम записаните मदीने неща की तरफ तशरीफ се लाए споменава, че तो और लोगों को हुक्म दिया около कि आए। 50 души ये वही जगह са थी били जो ранени. हवाब के मशवरे से मुकर्रर हुई थी। Бил е ये и मुकाम मुसलमानों का गोया मरकजी मुकाम था। отправен втория, जैसा कि बयान हो चुका है कि ये किला यहूद का सबसे मजबूत किला था както преди और съм споменал, खैबर का тази крепост बेहतरीन और मशहूर जंगजू е била една इस от किले की най-високите. क़यादत कर रहा था और इसकी मदद ऐसे शाहसवार कर रहे थे जो जुर्रत और शुजात में उससे कम न थे। И इसके тук दोनों са तरफ помагали такива хора, които вие сте मालूम чели है в историята. कि हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 दिन तक मुसलसल जंग करते रहे। आप हजरत मोहम्मद И सल्लल्लाहु като अलैहि си वसल्लम има के предвид, साथ че те са воювали और पड़ाव में 10 дни, в जब दुश्मन ने продължение मार्ग и बनाया течение на जब 10 शाम дни, हो जाती तो आप उसी तरफ без वापस आ जाते прекъсване. और जख्मी मुसलमानों को भी वहीं लाया जाता, वहाँ उनके जख्मों की मरहम पट्टी की जाती। След ранените войници са били обгрижвани с एक медицинско внимание. बिन अकवा की शहादत का जिक्र भी मिलता है जिसकी तफसील यूँ है कि उन्हीं दिनों में एक दिन मरहब इस किले का यहूदी सिपहसालार जो बहादुरी और जुर्रत में अपना सानी न रखता था, किले से बाहर आकर मुसलमानों को ललकारने लगा और गुरूर और तकब्बुर से अपनी तलवार लहराते हुए ये शेर पढ़ने लगा कि कद अलमत खैबर अन्नी मरहब शाकिस सिलाह वतन मुजर्रब इदल हरूबो अकबलत तलाहब। खैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ, Хебър знае, че аз съм तजर्बाकार, जबकि जंगें внимателен. मुल्काती हुई
И चैलेंज सुनकर हज़रत आमिर बिन अकवा един ден по време на тази битка Мархаб और ये изляза от крепостта и започнал да размахва меча си, खैबर हो докато предизвиквал мюсюлманите. राह वतन Но Хазрат Амр бин खैबर का Аква चप्पा चप्पा आगाह है излязал от मैं आमिर हूँ हथियार बंद बहादुर और जंगी खतरात के रेले में बेखौफ और खतर कूद पड़ने वाला इसके от बाद दोनों мюсюлманска армия मुकाबला и двамата имаха और битка, एक दूसरे पर वार करने в लगे която в крайна आमिर ने сметка तलवार доведе до उठाई мъченическа смърт на Хазрат आमिर ने Амр अपनी ढाल पर रोका и правейки और го अपनी втори ढाल мъченик в तलवार тази किया битка. लेकिन उनकी तलवार छोटी थी Светия пророк इसलिए Сарасалам го कुर्बानी похвалил, के बजाय като हज़रत казал, उमर че е ने много смел अपनी तलवारी и जिससे उनकी имаше много लहजों से लगा малко толкова смели хора като него. ये इस जंग के दूसरे शहीद थे दोनों को एक ही कब्र में यानी रजी के मुकाम पर दफन किया गया И двамата били погребани в един гроб. हज़रत अकवा सलमा बिन अकवा बयान करते हैं Хазрат कि ये Салма पूछा бин कि Аква तुमने споменава, अकवा जब अपने ही हाथों शहीद हो गए तो बाज़ साहबा कहने लगे कि आमर के अमाल तो ज़ाया हो गए चुनांचे हज़रत सलमा कहते हैं कि इस पर मैं रोते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया मैंने कहा या रसूलल्लाह плачейки आमर към केवल ज़ाया हो светия गए пророк, съм रसूलुल्लाह ने отишъл फरमाया и कि कैसे казал, че कहते हैं मैंने делата कहा कि на बाज़ Амър साहबा ने са били на празни. फरमाया Светия пророк कदब отговорил, не, кой ти е इन्ना казал, това е लहुल напълно невярно. वजमा बैना Те इस्बाई са живи и мъчениците живеят. इन्नहु लजाहिदुन मुजाहिदुन कल्ला अरबियुन मसा मशाबिहा मिसलहु यानी जिसने ये कहा गलत कहा है इसके लिए दो अजर हैं और आपने दो उंगलियों को इकट्ठा किया Затова има две възнаграждения. दो गिनती का शुमार करने के लिए और फरमाया वो तो बड़ा ही जहाद करने वाला है इस जैसा कम ही कोई ऐसा अरब है जो इस ज़मीन पर चला हो एक रिवायत में Едното е, че चला हो की जगह ये है कि पैदा हुआ हो यानी आमर जैसा कोई अरब पैदा नहीं हुआ да е бил роден човек, син като Амир. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाम रजी Светия пророк Сесалам е казал, че और वहीं से किला नाइम को फतह करने के लिए тъй मुसलसल като सहाबा कराम को भेजा जाता रहा са били изпращани между 10 дни जख्मी होने различни साहबा की хора मदद से यहूद के हौसले और и बुलंद така според आखिर एक това रात предание आप सरकार са फरमाया били жертвани само тези मैं उस двама शख्स के हाथ души. में झंडा दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह ताला फतह अता फरमाएगा वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है बुखारी की रिवायत है ये В हज़रत Бухари е अब्बास कहते हैं написано, че човек, हमने वो रात बड़ी който खुशी में обича गुजारी светия пророк, कि कल फतह हो той जाएगी обича всичко और около सुबह ये него सोचते सोचते रात गुजारी и каквото е कि किस को редно, झंडा दिया जाएगा той जब това सुबह हुई прави. तो सारे लोग Но един रसूलुल्लाह के ден पास आए на сутринта हर शख्स са एक एक дошли хора, और तमन्ना कर रहा था कि झंडा उसको които दिया जाए हज़रत उमर बयान करते हैं कि मैंने इस रोज़ से पहले कभी Хазрат Умар споменава, че след този अमानत को ден पसंद नहीं किया никога не съм कतादा बयान करते हैं харесвал वैसे किसी को аманат रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि да वसल्लम से किसी बात държа в की себе си. तमन्ना नहीं हुई मगर हर शख्स ये तमन्ना कर रहा था कि आज उसको ये झंडा मिले हत्ता कि कहते हैं मैंने एड़ियों के ऊंचा किया और सर को बुलंद किया कि शायद मुझे झंडा दे दिया जाए Като се सलमा има बिन предвид, अब्बास बयान че करते हैं са कि हज़रत अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे रह गए थे सफ़र खैबर के दौरान बीमारी की वजह से साथ नहीं आए थे लेकिन बाद में बेचैन होकर चले आए क्योंकि उनकी आंखों में शदीद दर्द था в продължение на 10 дни देता था जब евреите रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि са वसल्लम продължили да нарастват в своето अली ने सवाल किया недоверие मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के и पीछे रह накрая една गया вечер Светия пророк अली се съм казал, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि че वसल्लम на तक आए следващия ден ще се даде कतादा बयान करते हैं исламско знаме कि на रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि някого, वसल्लम ने чието वज़ू ръце किया мусулманите ще और победят. फजर की नमाज पढ़ी На फिर खड़े हुए और следващата खड़े होकर сутрин और लोगों को वाज किया फिर फरमाया अली कहाँ всички है отишли при светия आपने пророк, कहा कि अली की आंखों но में за да दर्द है видят आपने फरमाया अली को बुलाओ на кого ще бъде तो дадено अर्ज की знамето, कि मैं Светия अली को пророк се съм поискал Хазрат Али तो फरमाया да го видел и извикал незабавно. हज़रत अली ने अर्ज किया
но хората му казали, че той има болки в очите. Светия пророк му казал, че доближи се тук и дай това. Хазрат Али споменава, бях взел купата с мляко и я затоплих в себе си, но кай Аллах е дал улеснение и лечение на мен, че до края на живота си съм бил в едно добро състояние. Светия пророк се ме казал, че аз днес ще уважа онзи, който обича Аллах, който е готов да служи на Аллах, че и който излезе наяве пред мен като един голям смел човек, тогава аз ще му подаря този меч. И след като видяли очите на Хазрат Али, му казали, че нека Аллах дари успокоение на твоето здраве и очи. Но светия пророк е бил и предсказал, както и Аллах е дал обещание, че това място ще бъде освободено чрез делата и силата на Хазрат Али. След като го извикали и предоставили знамето в неговите ръце, взимайки приятели от Хазрат Али потичал със знамето в битката и го изправил, доколкото се може. Споменава се, че относно враговете за Хазрат Джабир, който Хазрат Али ги убил, и Хазрат Амир е бил също един добър подчинен човек на светия пророк. И в едно друго събитие се споменава за група евреи, за братият на Мархаб, той също е бил убил Ясър. Мухаммад бин Умар е написал, който е бил един от най-силните мъже между тях. Хазрат Али отстъпил и дал възможност на следващите, които имали желание да се бият в началото. Но някои хора се били изплашили за своите роднини, но Хазрат Мусалим предсказал, че тези хора, които в момента се бият, те ще спечелят, защото те са били от мюсюлманите.
जबकि जंगें शोले भड़काती हुई आएँ। इसके मुकाबले पर हज़रत अली बिन अबी तालिब निकले और उन्होंने Разказва, че Хазрат आग से Хебър तलवार निकाली और ये अशार कहे, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कल ऐसे गाबातिन करीहिल मंजरा उफ़ी हम उसाए कैलस संदरा, यानी वो मैं वो हूँ, मेरा नाम मेरी माँ ने аз हैदर रखा, съм онзи, नाक който शक्ल वाले शेर की माने моето име е Хебър, майка मैं ми एक го साथ поставила. तुम्हें संदरा देता हूँ। ये И एक аз तरीका है в तुम्हें कि शेर के मुकाबले सबर से एरिया ईंट का जवाब पत्थर से। संदरा के लफ्जी माने में क्याल वासे действителния होता है, जबकि सा превод на होता है ढाई शेर के बराबर। वो कहते हैं Андрам अली ने हज़रत означава असद पर ज़रब लगाई और उसे कत्ल कर दिया, फिर इसके हाथों फतह उनके हाथों फतह हुई। एक रिवायत में है споменава се в друго събитие, че Хазрат Али और मरब के दरमियान लड़ाई हुई, и между Мархаб आगे са बढ़ते се वक्त сбили, एक ज़रब लगाई но Хазрат Али चीरते हुए इसके दांतों तक पहुंच गई е стигнал до враговете много और близко, किले को फतह कर लिया। до такава степен, че всичко बाज़ में бе भी превзел. बयान है कि मोहम्मद बिन मसलमा ने मरहब को कत्ल किया था। चुनांचे हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रवायत है कि जब मरहब अपने हथियार पहने हुए मुकाबले की दावत देते हुए किले से निकला और रजिया अशार पढ़ रहा था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन इसका मुकाबला करेगा। हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह Хазрат सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, Мохамад मैं सब Муслама е споменал, अल्लाह की कसम че मैं о अपने пророк на Аллах, аз ще воювам हाथ с उठाकर него. इसके मुकाबले Той के लिए उठो е убил вчера моя और брат. इसकी मदद करो। И रिवायत така, है कि जब светия दोनों пророк е हजरत казал, अली добре, और изправи हुए се и तो दोनों молейки के се за него. पुराना दरख्त उठाए ले Казал, о Аллах, दोनों में एक दूसरे से помогни दरख्त की му. आड़ में बच दोनों एक दूसरे से दरख्त की आड़ में बचने लगे। जब भी कोई एक दरख्त की ओट में बना लेता, दूसरा उस तरफ से इस दरख्त को कुछ ना कुछ काट देता, हत्ता कि वो दोनों आमने सामने हो गए। फिर मरहब ने हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा पर तलवार से वार किया तो उन्होंने खुद को ढाल से बचाया। मरहब की तलवार ढाल में फंस गई और ढाल को काट दिया। Мар... हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा ने उसको तलवार से Меча на Мархаб е एक бил रिवायत में ये भी है покрит. कि मोहम्मद बिन मसलमा ने मरहब को ज़रब लगाई और उसकी टांगें काट दी तो वो गिर गया। फिर हज़रत अली उसके पास से गुजरे तो उन्होंने उसको Но след като минавал Хазрат Али शार и им बुखारी हज़रत इब्न помогнал, हजर ने लिखा है и в Бухари е कि साद написано मूसा बिन उकबा в Ibn बरकी और Исхак, कई दीगर अहले शेर ने लिखा है कि मरहब को मोहम्मद बिन मसलमा ने कत्ल किया था। मोहम्मद बिन मसलमा ने मरहब че को अपने Мархаб हारिस е बताया бил убит कि от बाज़ Муслима. रावियों को इश्तबा हो गया और उन्होंने हारिस के बजाय मरहब का नाम लिख दिया। और अगर मामला इस तरह नहीं है तो फिर जो सही मुस्लिम में है कि हज़रत अली ने मरहब को कत्ल किया, Но वो दीगर की निस्बत बहरहाल मुकद्दम има है। различни версии, सही за मुस्लिम които में Аллах знае най-много मोहम्मद добре. बिन В मसलमा Саи रज़ियल्लाहु Муслим से ही रवायत है е कि हज़रत написано अली по ने друг ही начин, मरहब को कत्ल किया था। सही मुस्लिम की रवायत दो वजहों से मुकद्दम है। पहली ये कि वो सनद के एतबार से सही है, दूसरी ये कि हज़रत जाबिर जिन्होंने मोहम्मद बिन मसलमा वाली रवायत बयान की है, като изброени रसूलुल्लाह के факти. खबर में मौजूद नहीं थे। इस बारे में यह भी वाज़ेह हो कि मरहब और इसके साथ उन दीगर यहूदियों की मुबारज़त और कत्ल के वाक़यात की बाबत तारीख़ व सीरत की कुतुब में ये इख्तिलाफ़ है कि किस किले में हुआ था। बुखारी че मुस्लिम през кой इब्न период माजा е станало तो и в सही коя जगह книга नहीं са है, записани, но в никоя книга не е доказано 100% वाक़यात सही достоверено. हैं, लेकिन किसी किले की तखसीस नहीं की, जैसे सीरत इब्न हशाम, तबक़ात इब्न साद, शरा ज़रक़ानी वगैरह। अलबत्ता बाज़ कुतुब में किला कमूस की निस्बत इन वाक़यात का ज़िक्र है और बाज़ में किला नाइम की निस्बत ज़िक्र किया गया है। बहरहाल 9 दिन तक ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के साथ इस कबीले के 9 дни मुकाबला लड़े, светия пророк यहाँ तक कि е आखिर में воювал с अल्लाह тези ने хора मुसलमानों को इस किले पर फतह दी। и दूसरी така. तरफ ये किला नाइम
Аллах е дал победа на мусулманите над враговете. किले की फतह के वक्त जो खैबर का मजबूत तरीन किला था, मुसलमानों ने कितनी गनाइम और किस कदर हथियारों से पर कब्जा किया। मुमकिन है कि मुसलमानों को ये काबिल जिक्र चीज़ ना मिली हो, क्योंकि यहूद ने हंगामी हालात के पेश नज़र औरतों और बच्चों को पहले ही दूसरे किलों में मुंतकिल कर दिया। Евреите още преди това нараняваха деца и възрастни и жените. पर मुसलमानों के हमला रोकने से आजिज आ गए, तो वो खुद भी सहूलत के साथ किला साहब बिन मुआज में मुंतकिल हो गए, और किला नाइम के मार्कों में कोई एक यहूदी भी मुसलमानों के हाथ कैद नहीं हुआ। Но мусулманите, никой евреи не са били арестували. जैसा कि Ще продължа да спомена в бъдеще част от тази проповед. मुसलमानों के हाथ Сега искам да отправя призив за молитви के लिए खसूसन за ужасните обстоятелства в света, за палестинците. बहुत दुआ करें। इनके हालात Хората бяха на мнение, че положението на палестинците ще се подобри, सीज फायर हो गई तो बेहतर हो но след договореното прекратяване на огъня, те обаче само се влошават जाए। और स्कीम и политиките и схемите на новия президент на САЩ कहते हैं हमारे मुल्क достигнаха нови върхове और बाहर दुनिया में на несправедливост и той вече е заплаха за целия свят, अल्लाह ताला не само за САЩ. Нека Аллах даде милост и спасение на хората. से बचे रहें ये लोग। Аз се моля Аллах да даде милост на палестинците в света भी अपने като цяло. और इत्तेहाद कायम करने की Арабските нации трябва да отворят очите си и да видят, че не могат да направят нищо без първо да се обединят. बाकी И ако не, тогава те също ще трябва да се изправят пред големи трудности. गोवा बाज Срещу тези несправедливости се надигат гласове, но властващите мълчат и не искат да чуят никого. आवाज़ें उठने लगी हैं। Трябва да се съсредоточим още повече върху молитвата, тъй като ние нямаме сили освен молитвата. मशहूर है Ситуацията в Пакистан и Бангладеш се влошава. Следователно трябва да се молим и за ахмадите там. की ज़रूरत है। Аз се моля Аллах да пази всеки, който е तो और कोई ताकत नहीं онеправдан и преследван तरह под своята защита दुआ करें। и нека светът се вразуми. बाज़ दफ़ा बाज़ दिनों में बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर जाते हैं मुखालफत में। बांग्लादेश के अहमदियों के लिए भी दुआ करें। वहाँ भी Молят се за ахмедите в Бангладеш. अल्लाह ताला उनको हर किस्म के Нека Аллах ги спаси от всякакъв вид зло и несправедливост. बाकी जगहों पर भी मजलूम लोगों के लिए दुआ करें, मजलूम अहमदियों के लिए दुआ करें। Молят се и за другите хора, които са убивани невинни, मान में रखे, दुनिया को अकल दे, अमन и да даде разум на света. अल्लाह ताला हमें दुआओं की तौफीक दे। Нека Аллах ни даде възможност за молитви. Амин. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر